Hello dear homeopaths. Today we will discuss on a case of HIE sequelae with global development delay with seizure disorder. HIE means hypoxic ischemic encephalopathy. आर्टिफिशियल साइंस के जनरल डॉक्टर्स ट्रीटमेंट तो कर नहीं पाते, किसी चीज़ का क्योर है नहीं, लेकिन बीमारियों का नामकरण बहुत अच्छा करते हैं। ऐसा नाम रखते हैं कि पेशेंट और उसकी फैमिली जब नाम सुने बीमारी का तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाए। जैसे अपन मूवीज़ में भी देखे हैं कि लिम्फोसार्कोमा ऑफ इंटेस्टाइन, एंड अभी लेटेस्ट में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम PCOS और PCOD हैज़ बीन रीनेम्ड टू पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम PMOS। तो नाम बड़े और दर्शन छोटे, नाम डायग्नोसिस बड़ी और रिजल्ट ज़ीरो। लेट्स लिव इट एंड लेट अस कम टू आवर टुडेज केस। पहले हम डिजीज़ डायग्नोसिस को समझ लेते हैं, फिर आगे केस बढ़ते हैं। तो HIE मतलब हाइपोक्सिक इस्चेमिक encephalopathy. Hypoxic means a condition where there is a lack of adequate oxygen, ischemic restricted blood flow, and encephalopathy मतलब any disease or dysfunction of brain. So, and sequelae means is a medical term for secondary condition or complication that arise as a direct result of previous disease, injury or trauma. So HIE means brain disease or abnormal condition or disease of brain resulting from inadequate supply of oxygen and blood to the brain, and its long-term effect on the individual patient. This usually occurs during the childbirth, leading to long-term adverse effect on the child, which includes cerebral palsy, motor muscle tone and balance disorder, convulsions, seizures disorder, cognitive impairment, that is developmental delays, learning disabilities, and lower IQ, that is mental retardation, sensory deficits, visual or hearing impairment, behavioral and attention issue, conditions like ADHD or lack of memory and focus. So let's come to our case. So this is a case of 2.5 years old female child who was brought to me in July 2021 with chief complaints of arrested development. The milestone of the child was compromised. She was not able to hold her neck even after 2.5 years of age. She was unable to sit or stand. She was unable to walk. If the parents try to stand her on her leg, she trembles. There was trembling of leg. There was no speech, not able to swallow solid food. She was on a liquid diet and mother's milk and also lactogen powder. Since last 4-5 days, there was lack of appetite and there was vomiting if her mother tried to feed her. मदर ने आगे बताया कि सर मेरी बच्ची बहुत रोती है, अचानक से बहुत रोती है, एकदम चीख के चिल्ला के रोती है, हम कुछ भी कर लें वो चुप नहीं होती, अगर चुप होना होगा तो खुद से चुप होती है, आंखें उसकी बंद रहती है और ज़ोर से रोती है, सोकर उठती है, चिल्ला कर रोती है। हमको लगता है कि शायद गोदी के लिए रो रही होगी तो हम उसको गोदी भी करते हैं, तो गोदी करने के बाद में भी वो चुप नहीं होती है। एक बात और है कि ये सिर्फ रोती नहीं है, ये हंसती भी है, बहुत ज़ोर से हंसती है और कितना भी उसको चिल्लाओ
डांटो तो भी हंसती रहती है, बिना हंसाए, बिना किसी कारण के, बिना कुछ किए, बिना हंसाए हंसती है, सिर्फ हंसती। डॉक्टर इसको कुछ समझ में नहीं आता। मेरी द टीथिंग वॉज डिलेड इन 9 months। देयर वॉज स्ट्राइडर, नॉइजी ब्रीदिंग। पेशेंट जब सांस लेती थी तो उसके गले से आवाज़ आती थी सिंस बर्थ। शी वॉज under allopathic treatment of a famous pediatrician from Raipur, and she was prescribed anticonvulsant medicine and some multivitamin and mineral syrup. The bowel was irregular, mostly constipated. Thermos of the child was hot, too much perspiration, and she was thirsty. Birth history: as they live in village, the mother was taken to government hospital for the delivery. In spite of showing there was no labor pain. Later on the bleeding started from the vagina, but even then there was no labor pain. So the mother of the child was referred to the private hospital. In the private hospital, the child was born by LFCS. After birth, the child did not cry immediately. She cried late in low voice. So she was kept in NICU for 5 days, where she developed a neonatal jaundice. She frequently suffered from cold, cough, fever every 15-20 days, and for that she had to be admitted to hospital. मदर ने बताया, इसको बाहर घूमने ले जाओ तो वापस आओ तो रोती है, बाइक में कहीं लेके जाओ तो खुश होती है, नया कपड़ा पहनाओ तो खुश होती है कि ये भी घूमने जाने वाले हैं। साइकिल में किसी को बैठने नहीं देती, इसकी बड़ी बहन अगर बैठ जाए तो ये रोती है। ऑन ऑब्जर्वेशन देयर वर enlarged lymph nodes on the cervical region. In such cases of birth defects, mother's pregnancy history play an important role in homeopathic treatment, because we get cause of the effect in pregnancy. The patient is second child. उसकी एक बड़ी बहन थी, 5 years की एज की है। उनकी मदर को जब मैंने प्रेगनेंसी हिस्ट्री पूछी तो उसने बताया कि सर प्रेगनेंसी के 5th मंथ में मुझे टाइफाइड हो गया था, 6th मंथ में और डिलीवरी तक मैं बीमार रहती थी, मुझे फ्रिक्वेंटली सर्दी, खांसी, फीवर हो जाता था। तो इसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ कॉज रहा होगा, बिना कारण के तो कोई बीमार पड़ेगा नहीं। तो मैंने आगे जानने की कोशिश की कि व्हाट वाज हर मेंटल स्टेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, व्हाट वाज द स्ट्रेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो पेशेंट की मदर ने बताया 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में मेरे हस्बैंड बोलते थे कि अगर आज तुमको प्रेगनेंसी कैरी करने में प्रॉब्लम हो रही है, तुम प्रेगनेंसी कैरी नहीं कर पा रही हो, तो चलो अबॉर्शन करवा लेते हैं। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ सर ऐसा वो बोले तो मैंने पूछा पेशेंट को कि ऐसा क्यों बोले। कि मदर ने बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान मैं बहुत बीमार रहती थी और मेरे घर वाले, मेरे इन-लॉज, मेरे हस्बैंड मेरी इस कंडीशन को समझते नहीं थे, मेरी प्रॉब्लम को समझते नहीं थे। मेरे इन-लॉज जो हैं वो मुझे बहुत सुनाते थे कि काम नहीं करती। मेरे फादर इन लॉ मुझे खाना नहीं देते थे। बड़ी बेटी उस समय उम्र में छोटी थी तो उसको मुझे केयर करने नहीं देते थे, पकड़ने नहीं देते थे। बोलते थे कि बच्चों को छोड़ो, तुम काम करो। मेरा इलाज नहीं कराते थे, ताना मारते थे, बीमार पड़ी रहती है, दिन भर सोते रहती है, काम नहीं करती है। ये सोच सोच के मुझे रात भर नींद नहीं आती थी। मैं किसी को जवाब नहीं दे पाती, बस केवल सुनती थी। और आगे उसने बताया कि हस्बैंड का किसी और लेडी के साथ में अफेयर था, वो उससे फ़ोन पे बात करते थे। मुझे बहुत हर्ट होता था। हस्बैंड के हाथ में उस लेडी के नाम का टैटू भी बना हुआ है। मैं जब प्रेगनेंसी में हस्बैंड मेरी तरफ ध्यान नहीं देते थे, फ़ोन पर लड़की से बात करते रहते थे, रात को लेट से आते थे और चुपचाप आके सो जाते थे। वो कभी मुझे पूछते भी नहीं थे कि तुम कैसी हो। प्रेगनेंसी में मेरी तरफ ध्यान देना चाहिए,
अच्छी बात करनी चाहिए। मैं किसी से नहीं बता पाती थी मेरी कंडीशन, क्योंकि मेरी ही बेइज्जती होगी ना। मैं नाम मिटाने बोलती थी तो वो नहीं मिटाते थे। सर, जब मेरे हस्बैंड को मेरी कोई परवाह नहीं है तो मैं अपने इन लॉज़ की क्या अपेक्षा रखूँ। मेरे हस्बैंड, मेरे इन लॉज़ की ऐसे बिहेवियर को देख कर ना मुझे बहुत टेंशन होता था। मुझे मेरे और मेरे बच्चों का भविष्य तो बर्बाद दिखाई देता था। अकेले में मैं बहुत रोती थी। मेरे फादर भी ना ड्रंकार्ड थे। वो अच्छे होते तो मेरी इतनी कम उम्र में शादी नहीं करते। बचपन से मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, आज तक कोई गलत काम नहीं किया। फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हुआ, माँ को भी ज़्यादा नहीं बताती थी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी वो मेरे फादर की वजह से परेशान थी। घुटन लगती थी, बोझ जैसा लगता था। मेरे ऊपर जो गुज़र रही थी ना, वो ना मैं किसी से बता पा रही थी, ना मैं सहन कर पा रही थी। सो लेट एनालाइज द केस। प्रेगनेंसी हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो उसकी मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत स्ट्रेस में थी। सो कितना सहन करना पड़ा। उसके इन लॉज का माल ट्रीटमेंट, दुर्व्यवहार, उसके हस्बैंड का निग्लेक्शन, उसके हस्बैंड का डिसेप्शन, बोझ और घुटन लगती थी अंदर से। उसको अपना और बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकार में लगा कि हमारे अब लाइफ तो पूरा बर्बाद है, हमारी लाइफ तो बेकार है। इसके लिए रूब्रिक है डिस्पेयर। डिस्पेयर मतलब कि निराशा, हताशा, नाउम्मीदी। सो द एग्जैक्ट रूब्रिक which I took in this case was despair, sadness from। बहुत दुखी थी पूरे प्रेगनेंसी भर में और हताशा और निराशा से भरी हुई थी उसकी मदर। सो आई टुक द रूब्रिक डिस्पेयर, सैडनेस फ्रॉम। सो मदर ने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बच्चे को ये इन्फॉर्मेशन पास की कि हमारी लाइफ तो बर्बाद है, कोई मतलब नहीं है। तो ब्रेन का क्या करोगी पैदा होके, बॉडी का क्या करोगी पैदा होके। सो बच्चा वीक ब्रेन और बॉडी के साथ पैदा हुआ। सेकेंड और एक PQRS सिम्टम उसकी मदर ने हमको चाइल्ड के बारे में दी, जो कि सिफिलिटिक है। बच्ची जो है वो चीख कर चिल्ला के रोती है। उसको कुछ भी कर लो चुप कराने के लिए, वो चुप ही नहीं होती है, खुद से शांत होती है। आंखें बंद करके रोती है ज़ोर ज़ोर से, और सिर्फ रोती नहीं है, कभी कभी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसती है, बिना हंसाए हंसती है, बिना किसी कारण के, बिना कुछ किए हंसती है। और हंसते समय अगर वो हंसती रहती है और उसको कितना भी डांट लो, अगर वो हंस रही है तो उसको भी ज़ोर से चिल्लाओ, डांटो, तो भी वो हंसते रहती है। सर उसको कुछ समझ में नहीं आता। ये बहुत कैरेक्टरिस्टिक है। क्या है ये है डेलीरियम की स्टेट। जब पेशेंट अपने सेंसेस खो देता है, वो अपने खुद के सेंसेस से कंट्रोल में नहीं है, डिरेल्ड कंडीशन, दिस इज डेलीरियम। और डेलीरियम में ये बच्ची कैसे बिहेव कर रही है, ज़ोर ज़ोर से रो रही है, कभी ज़ोर ज़ोर से हंस रही है। ये क्या है? ये एक मैनियक रिएक्शन है, पागलों जैसे बिहेव कर रही थी। सो आई टुक द रूब्रिक डेलीरियम मैनिएकल, जो कि सिफिलिटिक है। सो आई क्रॉस रिपोर्टराइज्ड 2 rubrics, despair, sadness from and delirium maniacal. After cross reportrization, we are left with Haliburus, belladonna, veratrum and natrum. As our patient was hot, so the chilly remedies like Haliburus, belladonna, veratrum were ruled out. तो बच्ची जो है अपनी मम्मी की सेंसिटिविटी लेके पैदा हुई थी। उसकी मदर एक डिग्निफाइड लेडी थी। उसको इतना कुछ सहन करना पड़ रहा था, लेकिन फिर भी वो दूसरों को नहीं बता रही थी। ये सोच के नहीं बता रही थी कि इसमें मेरी ही बेइज्जती है। तो एक सेल्फ एस्टीम वाली डिग्निफाइड लेडी थी, अफेक्टेड बाय द डिसअपॉइंटमेंट, डिसेप्शन, ग्रीव, सैडनेस
despair, and also her emotions were suppressed ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वो किसी को बोल नहीं पा रही थी, अंदर अंदर घुटे जा रही थी। तो ये सारे कैरेक्टर्स जो है, ये सारे सिम्टम्स हमारे नेट्रम्यूर से मैच करते हैं। सो आई प्रिस्क्राइब सिंगल डोज ऑफ नेट्रम्यूर 200। आफ्टर 2 weeks when the patient came, there was very good improvement. Shrieking, weeping, crying of the baby improved. It decreased. The maniacal reaction of the baby disappeared completely. There was weeping and crying, but it was decreased. The appetite of the child improved. She started feeding. Noise from the throat disappeared completely. There was no vomiting after feeding, after or during feeding. The mother ने बताया कि सर इसकी बॉडी पहले से थोड़ी मजबूत लग रही है। नेक्स्ट फिर मैंने 1 month की मेडिसिन देके पेशेंट को भेज दिया। 1 month के बाद में फिर मेरे पास फॉलो अप आया, तो उसमें भी बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट था, प्रोग्रेसिव इम्प्रूवमेंट था। उस पेशेंट बच्चे में नेक होल्डिंग आ गई, ठीक है। अब थोड़ा सेमी सॉलिड खाना खाना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि खिचड़ी, दाल, चावल मैश करके, केला, ठीक है। पहले वो सॉलिड फूड निगल ही नहीं पाती थी, है ना। पहले पलट नहीं पाती थी, अभी थोड़ा बहुत पलटना शुरू कर दी वो बेड में। देयर वाज नो डेलीरियस क्राई, द जनरल्स वर फाइन। द नेक्स्ट फिर 1 month के बाद में फिर फॉलोअप आया, उसमें पेशेंट और अच्छा इम्प्रूव हुई। अब तो उसको सहारे से बैठने लगी, सहारे से खड़े करते थे तो खड़े होने लग गई। पहले ट्रेमलिंग होती थी, पैर में खड़े करने की कोशिश करते थे, तो अब ट्रेमलिंग भी नहीं होती थी। और 1-2 वर्ड्स बोलना चालू कर दी थी, मामा मामा, पापा पापा, ऐसा ये वर्ड्स भी बोलना शुरू कर दी। उसके घर वाले बहुत खुश थे, उसकी मदर बहुत खुश थी। पर उसके फादर, मुझे लगा कि उसके फादर जो है वो सीरियस नहीं थे बच्ची के ट्रीटमेंट के लिए। वो मुझे उसकी मदर ने बताया था कि दोनों बेटियां हो गई ना, तो उसके ऊपर प्रेशर है कि एक बेटा आना चाहिए। और उसकी इन लॉज भी जो है बेटी है करके, वो लोग खुश नहीं थे। उसके हस्बैंड मुझे ट्रीटमेंट के लिए भी सीरियस नहीं दिखे। वो बोली कि मैं हस्बैंड को याद दिलाती हूँ कि मेडिसिन लेना है, मैं उनको फोर्स करती हूँ, बहुत बार बोलने के बाद में मेडिसिन लेने आते हैं। कई बार तो उन्होंने गैप भी कर दिया ट्रीटमेंट में। तो ऐसे इन लोग 5-6 महीना मेरे पास ट्रीटमेंट में रहे, और फिर अचानक से इन्होंने ट्रीटमेंट बंद कर दिया। लेकिन उस केस में के इम्प्रूवमेंट को देख के उस गाँव के मेरे पास बहुत सारे बच्चों का, कई और केसेस मुझे मिले बच्चों के, और वो पेशेंट्स आते थे उनके गांव के, तो मैं उनसे पूछता था उस बच्ची के बारे में, तो वो बताते थे कि वो बच्ची तो बहुत अच्छी हो गई, चलने लगी है, बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आ गया है। सो थैंक यू, सी यू सून विथ सम न्यू केस। थैंक यू वेरी मच।